گے اور زندہ کلام کریں گے۔ کتنے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے؟ کتنے لوگ پریشانی میں مصیبت میں بڑبڑانا شروع کرتے ہیں؟ ایمان سے میں ہاتھ بلند کرتی ہوں، میں بے دل ہو جاتی ہوں۔ میری پوری کلیسیا ایماندار ہے، کوئی بے دل نہیں ہوتا، ہاللیلویا، لیکن میں دل چھوٹا کر جاتی ہوں۔ لیکن دوسری لمحے خدا کا زندہ کلام کی خوبصورت آیت کے ذریعے سے خدا کا روح مجھے سکھاتا ہے، اور دوسری لمحے میں دلیر ہوتی ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے میں دل چھوٹا کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ لیکن ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ زندہ کلام سے آج سب سے پہلے ہم پہلا ریفرنس نکالیں گے متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 22ویں آیت سے۔ زندہ کلام اس طرح سے لکھا ہے، سب نے نکال لیا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جس کی پیدائش سے پہلے ہی، جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے بارے میں نبیوں نے اس کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے ہی یسایہ میں پیشن گوئی کر دی گئی ہے کہ ایک کنواری جو ہے ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، اور ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جو پیشن گوئی جیسے یسوع کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سالہ بہ سال جو ہے وہ جاری ہو چکی تھی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا نام لینے سے ہی ہمارے اندر ایک تسلی اور ایک امید آتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں، پریشانی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو کسی چیز کے لیے آ کے مبارکباد دیتے، کوئی آپ کو صرف اتنا کہہ دے کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ہم دوسرے لمحے روتے روتے ایک دم سے ہنس پڑیں گے اور پوچھیں گے کیا خوشخبری ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم سبھی انسان ہیں، ہم سبھی ایک ٹائم پہ تھکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن جیسے بھی ہمیں بولتے ہیں پریشانی میں کہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، تو دوسرے لمحے ہم اس خوشی کی خبر کو سننے کے لیے متمنی ہو جاتے ہیں کہ کیا خوشخبری ہے۔ تو اسی طرح سے اس کا نام ہی ایمانویل رکھ دیا گیا، تاکہ جب کبھی کوئی غم میں، پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں اس کا نام ہی پکارے تو اس کے اندر کیا آ جائے؟ تسلی آ جائے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ خدا کا کلام میری زندگی میں پورا نہیں ہوتا؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ خدا ہمیں انتظار کروا رہا ہے؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام شاید میرے لیے نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں تھک جاتے ہیں، جبکہ ہم اس کے نام کے اندر ہی تسلی ہے۔ فقط اس کا نام لینے سے ہم تسلی پا جاتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ فقط اس کا نام کے اندر ہی اتنی تسلی ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ ہے، جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ہوں گے تو کیا آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ اس کی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا جب آپ وہ پریشان ہوگا اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے؟ کیا جب آپ دیکھیں گے کہ میرے بچے کو میری ضرورت ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ جب آپ اس کے ساتھ ہیں، جب آپ اس کے پاس ہیں تو یقیناً کریں گے۔ ہاللیلویا۔ ہاں، جب آپ اس سے دور ہیں یا آپ کا بچہ آپ سے دور ہو گیا ہے تو پھر ایسا ہوگا کہ کئی دفعہ مشکلات میں، پریشانی میں ہوں گے، اور آپ کے ماں باپ جب آپ سے دور ہیں تو آپ تک نہ پہنچ سکیں گے اور نہ وقت پہ آپ کی ضروریات کو پورا کر سکیں گے۔ ہاللیلویا۔ آئے آج زندہ کلام ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ یہ جو شکوے ہم خدا سے کرتے ہیں، کرنے چاہیے شکوے، میں بھی کرتی ہوں، ہم سبھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدا سے کہ خدا ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سنتا، خدا ہمیں جواب کیوں نہیں دیتا، شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمیں خدا سے بات کرنی چاہیے، خدا سے پوچھنا چاہیے۔ آئیں آج ہم زندہ کلام میں سے میرے ساتھ نکالیں یشوع کی کتاب،
यशवा की किताब उसका 7 बाब 8 आयत से पढ़ूंगी। जो कलाम मुकद्दस पढ़ सकते हैं वो बाइबल मुकद्दस लें और मेरे साथ हवाले जरूर निकालने की कोशिश करें। सबने निकाल लिए? 7 बाब। यशवा की किताब 7 बाब 8वीं आयत से पढ़ूंगी। ए मालिक, इसराइलों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूँ, क्योंकि किनानी इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा देंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है? आमीन। यशवा जो बड़ा सूरमा था, जिसके बारे में खुदा ने कहा था कि मैं मूसा के साथ हूँ और यशवा खौफ ना खा, हीरे सा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह क्या है, मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। इतने सारे वादे यशवा के साथ हो चुके हैं। अब क्या वजह है कि यशवा जो है ये ऊंधा पड़ा है, यशवा जो है ये बेदिल होके बैठा हुआ है, यशवा जो है ये डरा हुआ है, यशवा खुदा से शिकवे कर रहा है, खुदा से गिले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे खुदा ने यशवा को और उसके लोगों को उसके दुश्मनों के हाथ में कर दिया। जिस जंग के लिए गए, जिस मैदान में ये उतरे, वहाँ पे खुदा ने इनका साथ नहीं दिया, वहाँ पे ये हार गए। जब ये हार गए, जब ये शिकस्त याफ्ता हो गए, तो लोगों ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, तू हमें क्यों ले आया, तू हम पे क्यों मेहरबान हुआ, तू कहता था खुदा तेरे साथ है, खुदा तेरी रहनुमाई करेगा, खुदा तेरी मदद करेगा, ये क्या हुआ, हम तो दुश्मनों से हार गए। इन सारी बातों ने यशवा को इतना परेशान कर दिया कि अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो लिखा है कि तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक आगे शाम तक जमीन पर ऊंधे पड़े रहे और अपने सर पर खाक डाली। इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए, इतना वो गम की हालत में आ गए कि क्या किया, अपने कपड़े फाड़ दिए, जमीन पे ऊंधे पड़े रहे, अपने सर में खाक डाली कि खुदा ने अमोरियों को, जिनसे खुदा खुश नहीं है, अमोरियों को जो खुदा की कौम नहीं है, खुदा ने उन्हें क्यों फतह दे दी, हम क्यों हार गए, खुदा तो हमारे साथ है, हमने अपने दुश्मनों से क्यों धोखा खा लिया, क्यों शिकस्त खा ली, हम अपनी हार को वो कबूल नहीं कर पा रहे थे। और फौरन उन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और यशवा क्या कह रहे कि ऐ खुदा तो अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा। सेम आज मेरे अजीजों कभी कभी हम इस सिचुएशन में आते हैं, किसी चीज के लिए हम खुदा के हुजूर ठहरते हैं, किसी बात के लिए हम खुदा के हुजूर ठहरते हैं और हमें उसमें फतह नहीं मिलती, हमें उसमें कामयाबी नहीं मिलती, या कोई दुआ हम बड़े अरसे से कर रहे होते हैं, हमें उसमें कामयाबी नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, हम मातम की हालत में आ जाते हैं, हम गम की हालत में आ जाते हैं। यहाँ पर यशवा ने भी खाना पीना छोड़ दिया है, ये सुबह से लेकर शाम तक ये और इसके साथ जितने नबी काहिन इसके साथ हैं, ये सब मातम की हालत में बैठे हुए हैं। कपड़े फाड़ना, खाक अपने सर पे ओढ़ना, ये मातम को जाहिर करता है। वो अफसुर्दा दिल हो गए हैं, वो परेशान हुए हैं। जब भी वो पीछे, अगर हम इनसे पीछे वाले जो है पीछे चैप्टर्स में चले जाएं, तो वही खुदा है जो यशवा के साथ है और यशवा क्या कर रहा है, यरदन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है।
تبھی تو خدا ان کے ساتھ ہے۔ جب یہ جو ہے یرو کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور یرو کی دیواروں کو گرا رہے ہیں، تبھی تو خدا ان کے ساتھ ہے۔ اتنے بڑے بڑے ناممکن کام جو ہیں ان کی زندگی میں ممکن ہو رہے ہیں۔ کیا کبھی آج تک آپ نے اپنی زندگی میں کلزم کو یا سمندر کو دو حصے ہوتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے صرف چکر لگانے سے کبھی بڑی بڑی دیواریں گرائی ہیں؟ نہیں، لیکن ان کی زندگی میں حقیقت ہوا ہے۔ خدا نے انہیں کر کے دکھایا ہے، خدا نے ان کے لیے ناممکن چیزوں کو ممکن کیا ہے، خدا نے انہیں فتح مندی دی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ اموریوں کے ہاتھ سے شکست کھا رہے ہیں تو یہ سب ماتم بچھا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ پریشان ہو گئے ہیں، یہ شکستہ دل ہو گئے ہیں، خدا کے حضور جو ہے شکوے کرنے لگے ہیں اور خدا کے نام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا۔ بڑے بڑے بول بولنے لگے ہیں خدا کے حضور۔ لیکن ایک دفعہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ زندہ خدا اگر کلزم کو دو حصے کر سکتا تھا اس وقت میرے لیے، میری قوم کے لیے، زندہ خدا اگر اس وقت یرو کی دیواروں کو گرا سکتا تھا میرے اور میری قوم کے لیے، مجھے فتح دے سکتا تھا، تو اب خدا مجھے فتح کیوں نہیں دیا؟ پہلی بات جو روح القدس ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ خدا تو آج کل اب تک یکساں ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس نے محبت کرنی انسان سے نہ کبھی چھوڑی ہے نہ کبھی چھوڑے گا، کیونکہ اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیار سے بنایا، اپنا دم پھونکا ہے۔ اگر آپ پیدائش میں دیکھیں تو ساری چیزیں جب خدا نے بنائی تو لکھا ہے کہ کیا خدا نے آخر میں بولا کہ اچھا ہے، اچھا ہے۔ لیکن جب انسان کو بنایا تو کہتا ہے بہت اچھا ہے۔ سب چیزیں اس نے حکومت دی اور واقع ہو گئی، لیکن انسان کو بڑے پیار سے اپنی شبیہ پہ بنا رہا ہے۔ تو وہ انسان سے تو پیار ہمیشہ ہی کرتا آیا ہے، تو وہ کیوں پھر ہم اس کے پیار کو، اس کی شفقت کو، اس کی رحمت کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں جو بڑے بڑے کام خدا نے ہمارے لیے کیے وہ بھول جاتے ہیں، اور جو نہیں ہوا اس کے اوپر ہم خدا سے لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں؟ ہمیں شکوہ کریں، ٹھیک ہے ہم شکوہ کر رہے ہیں، وہ ہمارا باپ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے۔ روح ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، ہمیں جانچنا ہے خود کو کہ خدا اگر اس دفعہ میرے ساتھ تھا، اب خدا میرے ساتھ کیوں نہیں؟ خدا نے مجھے وہاں فتح دی تو یہاں مجھے کیوں شکست دی؟ وہاں خدا نے میری رہنمائی کی تو یہاں میں نے ٹھیک فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ خدا کے کلام میں کبھی بھی کمی نہیں ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کا کلام ہمیشہ سے کامل ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق زندہ خدا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کمی ہمیشہ ہمارے اندر ہے۔ روح کو ساتھ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی کمی کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی۔ بچہ جب رزلٹ جرمن کے اسکول میں جب پیپر ہوتے ہیں، پیپر کے بعد رزلٹ سے پہلے بچوں کو جو ہے وہ پیپر دکھائے جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، آپ اپنے پیپر کو ری چیک کریں۔ تو ہمیشہ جرمن کے ساتھ میں جاتی ہوں، جو کویسچن صحیح ہوتے ہیں یہ بار بار مجھے وہ دکھاتے ہیں، جو غلط ہوتا ہے جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہوں تو اس کو آگے پیپر کر دیں گے، ماما یہ دیکھیں یہ کتنے پورے نمبر ہیں، ماما یہ دیکھیں کتنا مشکل سوال ہے۔ لیکن جو غلط ہوتا ہے جب میں وہ دیکھتی ہوں تو ان کی کوشش ہوتی ہے ماں اس پہ نظر نہ ڈالیں، جس میں اچھا کیا بس وہ دیکھیں۔ لیکن میں ہمیشہ جو اچھا کیا ہوتا ہے وہ کم دیکھتی ہوں، جہاں پہ غلط ہوتا ہے وہ زیادہ دیکھتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں غلط کی وجہ سے دیکھتی ہوں۔ میں ان کو یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ نے سیکھا کس طرح سے تھا، جب یہ کویسچن آیا آپ نے غلطی کیا کی؟ کیونکہ جب ہم اپنی غلطی کو سیکھیں گے کہ ہم نے کہاں پہ غلطی کی، ہم کس چیز کون سا سوال تھا اور ہم اسے صحیح سمجھ نہیں سکے، تبھی ہم نے غلط جواب دیا۔ اگر ہم سوال کو صحیح سمجھیں گے تو جواب صحیح لکھیں گے۔ تو میں بار بار اس کو دیکھ رہی ہوں، اکثر مجھ سے لڑ پڑیں گے، ماما تو غلط کو بار بار دیکھتی، ماما صحیح کو نہیں دیکھتی، جو تم لوگوں نے صحیح کیا وہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم بھی ایک امتحان میں سے گزرتے ہیں، اگر ہم اس میں فیل ہوتے ہیں، اگر ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں، تو پھر واپس جائیں، ان ساری چیزوں میں واپس جائیں، بیٹھیں، سوچیں، خیال کریں کہ اس دفعہ یہ کیوں ہوا ہے۔ تو جب آپ انسان کے اندر ہی اس کا ضمیر جو ہے نا اس کا بہترین آئینہ ہے، اگر وہ صاف ہو،
अगर वो धुंधला ना हो, तो वो आपको आर पार हर चीज दिखाएगा, आपको बताएगा। हालेलुया। यहाँ पे ये खाक अपने सरों पे डाल ली, अपने कपड़े फाड़ लिए, मातम में आके सुबह से लेकर शाम तक औंधे मुंह पड़े हैं। इससे ये जाहिर होता है कि इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, गम की हालत में। खुदा से कह रहे हैं कि तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा। वो तो कादिर मुतलक है, वो तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो तो सिर्फ कह ही दे और वाक़या हो जाता है। हालेलुया। वो चीज़ों को ऐसे बुलाता है जैसे वो पहले से मौजूद है। वो अपने नाम को जला देने के लिए, अपने नाम को बुजुर्ग ठहराने के लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन। आगे पढ़ेंगे 11वीं आयत से। इस्राएलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था तोड़ा। उन्होंने मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले भी लिया, चोरी भी की, रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया है। हालेलुया हालेलुया। आपको अब समझ आई कि वो खुदा जो कुल्ज़म के 2 हिस्से कर सकता है, वो खुदा जो यरूशलेम की दीवार को गिरा सकता है, वो खुदा उनको अमूरियों के हाथ में क्यों कर दिया? गलती किस में निकली? इंसान ने। क्या किया था उन लोगों ने? रियाकारी की, चोरी की, बदकारी की, वो तमाम चीज़ें जो उनको अपने माल सबाब में शामिल नहीं करनी थी, जो खुदा ने हुक्म दिया था, क्या किया उन्होंने? उस हुक्म को तोड़ दिया। हो सकता है किसी ने एक छोटी सी चीज़ चुरा ली हो, तो ये छोटी सी तो है, इससे क्या होता है, इतना कुछ तो मैं नहीं ले रहा, अंदर डाल दिया, चोरी कर ली। किसी ने किसी ऐसी नापाक चीज़ को पकड़ लिया जो खुदा ने मना किया था, ये छोटा सा ही तो है, कोई मसला नहीं, अंदर डाल लिया। तो मसला हमें खुद ही है, हम ही खुदा के हद को तोड़ रहे हैं, हम ही नाफरमानी कर रहे हैं, हम ही वो काम कर रहे हैं जो हमें जायज़ नहीं। क्या रियाकारी जायज़ है? क्या चोरी जायज़ है? क्या गुनाह जायज़ है? क्या हुक्म तोड़ना जायज़ है? क्या नाफरमानी करना जायज़ है? आप मुझे बताएं। कितने लोग कहते हैं जायज़ है? नहीं है। तो वो लोग अपनी गलतियां नहीं देख रहे। यशवा तो बेचारा बेकसूर है, उसे तो पता ही नहीं कि उसकी कौम ने क्या किया। वो तो यशवा को इतनी बातें सुना रहे हैं, यशवा को बुरा भला कह रहे हैं, यशवा तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे। तो यशवा औंधे मुंह गिर पड़ा। यशवा को लगा मेरे अंदर कमी है, यशवा को लगा कि मेरा खुदा मुझसे नाराज है, और वो खुदा के ज़ुबान में बैठ गया, खाकसार हो गया, गिर गया, अफसोस में आ गया। लेकिन गलती कहाँ थी? कौम के अपने अंदर। तो कलाम कैसे पूरा होगा? खुदा कैसे साथ होगा? हालेलुया हालेलुया। खुदा ने बताया यशवा को कि देख इन्होंने क्या किया, तेरे लोगों ने क्या किया, तमाम वो बदकारी वो गुनाह उन्होंने कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? मखसूस हुई चीज़ें भी ले ली, उन्होंने चोरी भी की, रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया। इसीलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सका, इसीलिए खुदा ने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया। तो पहला हमें जवाब ये मिल गया कि जो हम अक्सर खुदा से शिकवा करते हैं, अक्सर खुदा से गिला करते हैं कि खुदा तू तो मेरे साथ है, देख फलां शख्स मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, देख वो मुझसे ज़्यादा ब्लेस्ड है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ वफादार हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि रूह कुछ बहुत हसास है। हमारे छोटे से अमल से, हमारी छोटी सी चीज़ से, हमारी छोटी सी सोच से जो है खुदा हमसे नाराज हो जाता है। यहाँ पे जो ये चोरी करके लाएंगे, यकीनन कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चोरी नहीं की होंगी वरना यशवा को नजर आती। ये छोटी चीज़ें चोरी की होंगी जो यशवा अपनी आंखों से देख नहीं पाया। लेकिन बताना आपको ये चाहती हूँ, हुक्म आप छोटी बात से तोड़ें, आप बड़ी बात से तोड़ें, हुक्म तोड़ना गुनाह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो पहला जवाब हमें मिला इस सफर के दौरान
एलिया के दिल में नहीं आया होगा कि खुदा मेरे साथ है। एलिया को नहीं लगता होगा इतना लंबा सफर हो गया, खुदा चाहता तो ये 40 दिन तो एक दिन में हो जाते। एलिया जो खुद इतने मौजज़ात करता है, तो अब एलिया अपने लिए मौजज़ा क्यों नहीं कर सका? ये 40 दिन का सफर 40 दिन का ही क्यों रहा? एक हफ्ते का हो जाता, 10 दिन का हो जाता। फिर पहली बात दोबारा इसके अंदर इंतजार आ। दूसरी बात ये कि एलिया सफर करता जा रहा है, उसने इंतजार करता जा रहा है, एक उम्मीद के साथ जा रहा है कि खुदा मुझे बचाएगा, खुदा मुझे छुड़ाएगा, खुदा मेरे साथ है। उसे यकीन है क्योंकि वहाँ खुदा ने मुझे मेरा खाने पीने का इंतजाम कर दिया, मैंने ताकत पाली, मैंने कुव्वत पाली, और वो सफर करता जा रहा है कि खुदा मेरे साथ है। गार में छुप गया। मैं समझती हूँ कि जब बड़ी आंधी आई थी कि उसने पहाड़ को चीरा, एलिया गुस्सा होगा, इतनी बड़ी आंधी आई है, पहाड़ भी चीरे गए हैं, पहाड़ भी रेजा रेजा है, अब यकीनन खुदा आ गया, अब खुदा मेरे पास आएगा, खुदा मुझे इस गार से निकलने के लिए करेगा। वो इंतजार कर रहा है, लेकिन क्या हुआ? खुदा नहीं है उसमें। अब ज़िलज़िला आना शुरू हो गया, ज़मीन की नींव तक हिलने लग गई है। मैं सोचती हूँ एलिया अंदर बैठा होगा, कहता होगा अब तो ज़िलज़िला आया, इतनी बड़ी आंधी गुजर गई, इतनी बड़ी मुसीबत गुजर गई, इतना बड़ा दुख गुजर गया, अब मुझे खुदा दुख नहीं देगा, अब खुदा आएगा। ज़िलज़िला आया, क्या खुदा उसमें था? ज़िलज़िला में भी खुदा नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे किसी वर्ष में देखा कि एलिया ने कोई शिकवा किया? अब उससे ज्यादा खतरनाक हो गया, आग आ गई है। जब आग आई तो एलिया सोचता था हाँ वो जो है आग में खुदा उतरता था, आग में वो मूसा के पास उतरा था, झाड़ी में उतरा था, आग में खुदा उतरता था, खुदा आग में बातें करता था। हाँ अब तो ये जो आग आई है, इस मुश्किल के बाद तो यकीनन मुझे आज़ादी मिल जाएगी, इस मुश्किल के बाद तो यकीनन मुझे रिहाई मिल जाएगी, इस मुश्किल के बाद तो यकीनन खुदा मेरे साथ खड़ा होगा। तो क्या खुदा आग में था? फिर खुदा आग में भी है। और एलिया की हम जगह हम लोग होते, हम तो शायद पहले आंधी के बाद ही हम बेदिल हो जाते, ज़लज़ले के बाद हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते, आग के बाद बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते। लेकिन इसको खुदा पे यकीन है, इसको पता है खुदा मेरे साथ है, क्योंकि जो खुदा ने पहले इसके साथ किया वो ये याद रखा है। इसको पता है कि सफर से पहले ही खुदा ने मुझे कुव्वत दी है। एक दफा खाना खा के जब वो लेटता है तो फरिश्तों से कहता है नहीं उठ, तू दोबारा खा और दोबारा जो है पी, ताकि तू क्या करे, कुव्वत पाए। फिर वो खाता है पीता है, कुव्वत पाता है। तो यकीनन ये वो उस कलाम को, और मैं सोचती हूँ कि जब वो गार में था, अब आप मुझे पता है गार किस चीज को जाहिर कर रहे हैं? मुसीबत को, दुख को, कैद को, परेशानी को, गम को, अंधेरे को। जब उस मुसीबत में, दुख में, ऑलरेडी कैद में, ऑलरेडी परेशानी में, ऊपर से फिर और परेशानियां आ रही, उसका टेस्ट किया जा रहा है, उसका इम्तिहान लिया जा रहा है कि अब आंधी आती है तो एलिया क्या कहता है, क्या ये मेरे दिल बुड़बुड़ाएगा? ज़लज़ले के बाद क्या एलिया बुड़बुड़ाएगा? आग के बाद क्या एलिया बुड़बुड़ाएगा? जब एलिया बुड़बुड़ाता नहीं और एलिया इस बात का यकीन रखता है कि खुदा मेरे साथ है, तो फिर पाकलाम में कितना खूबसूरत लिखा है कि हल्की सी दबी हुई आवाज है। और एलिया ने सुन ली। क्यों सुनी? इसके तो कारण में उसको तो ये कहना चाहिए था तो खुदावन को जो इतनी जोरदार आंधी आई थी ना, मेरे कानों से तो उसकी आवाज नहीं जा रही। खुदावन को जो ज़लज़ला आया था ना, तो उसके बाद से जो घर हिले, जो ज़मीनें हिली, वो आवाज़ ही मेरे कानों से नहीं जा रही। खुदावन को जो आग आई थी ना, उसका धुआं इतना था कि मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। बहुत सारे रीज़न से एलिया कह सकता था, लेकिन वो हल्की नहीं सुनता
खुदा, हो सकता है खुदा एक आवाज देता, 2 आवाज देता और खुदा चला जाता वहां से। फिर एलिया को खुद ही मेहनत करनी पड़ती, एलिया को खुद ही भेष बदल कर आती है, ताकि जो है एलिया समझे, एलीशा समझे कि ये कोई दूसरी औरत है और मेरे बेटे के लिए शिफा जारी कर दे। लेकिन याद रखिएगा कि रूल कुछ हमेशा जांच लेता है, परख लेता है, पहचान लेता है। रूल कुछ से कोई झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। वो औरत अभी बाकी नहीं है और एलीशा अपने नौकर को कहता है कि अब तेरे पास से यरबाम की बीवी आएगी, वो भेष बदला होगा और अपने आप को दूसरी औरत बताएगी ताकि उसका बेटा शिफा पाए। तो पाकरू को पहले ही पता होता है आप किस नीयत से खुदा के पास आ रहे हैं, आप किस ईमान से खुदा के पास आ रहे हैं, आप किस सोच से आ रहे हैं। आमीन। तो जब आप खुदा के पास आए तो अपने केस मत बदले, आपका जो भी आपका हुलिया है, आप जैसे भी हैं खुदा के पास ऐसी है। उसके पास इतनी कुदरत है कि वह आपके लिबास को, आपके ड्रेस को खुद तब्दील कर दे। आमीन। तो खुदावंद हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपकी मदद करेगा। तो आज की इन 3 बातों को अपने ज़हन में रखिएगा कि आज से ये कहना छोड़ेंगे कि खुदा हमारे साथ है, क्योंकि उसका नाम ही इमैनुएल है। तो जब हम उसका नाम ही लेते हैं तभी से वो हमारे साथ है। आमीन। सबसे पहले हमने अपने आप को परखा। आप फेलियर्स के बाद आपको लगता है कि खुदा मेरे साथ ही, परखें, जांचें। जहाँ हम कम है उस चीज़ के लिए दुआ करें, उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें। नंबर 2, हमें इंतज़ार करना है। फरिश्ता खुद प्रैक्टिकल करके जदाओं को सिखा रहे हैं कि इंतज़ार करना है। आप वेट करें अपनी बरकत के लिए, वेट करें कि खुदा मुझे जवाब देगा, इंतज़ार करें। और तीसरी बात ये, आंधी आए, तूफान आए, मुश्किलात आए, बुड़बुड़ाना देखें। उसकी आवाज़ के लिए अपने कानों को अलर्ट रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आंधी के बाद खुदा एलिया को आवाज़ दे सकता था, आग से पहले दे सकता था, जलजले के बाद दे सकता था। एलिया उन चीज़ों पे नज़र नहीं कर रहा, एलिया के कान इंतज़ार कर रहे थे खुदा की आवाज़ का। इसीलिए उसने हल्की दबी आवाज़ भी सुनी और खुदा जब उसे कहते हैं कि एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या खुदा को नहीं पता वो क्या कर रहा है? ये सिर्फ एलिया को वो चेक कर रहे हैं कि क्या एलिया मेरी आवाज़ का मुतलाशी है, क्या एलिया का ध्यान मेरी आवाज़ की तरफ है, क्या एलिया मेरा इंतज़ार कर रहा है? तो हमें भी इसी तरह से खुदा का इंतज़ार करना है, मुतलाशी रहना है और खुदावंद हम सबको खुदा में रहने और चलने का फजल दे। आमीन।